And we begin first up with the latest on the probe into Sambhal riots that broke out on 24th of November last year. The Sambhal police has now sent key accused Afroz, who's accused in killing of 2 individuals in the Sambhal riots, to custody. In fact, recoveries that have been made from the writer by the UP police, the visuals of which on your screens of the weapons and cartridges that were recovered from the riot accused Afroz. In fact, note Afroz is the writer who'd fired at the people, targeting the police personnel on 24th of January. So those are the details of the writer who's now been sent to police custody. The police will now seek police custody remand from the court to gather further information from him. In fact, during the interrogation, Afroz confessed to delivering foreign weapons, and police also recovered Pakistan Ordnance Factory cartridges and empty shells of US-made ammunition at the crime site. Let's go across to Sahil, who's joining us live from Sambhal. Sahil, it's clearly been established that there is a direct Pakistan link to the riots that broke out on 24th of November. Once again, talk to us about what do we know about Afroz, the key accused, and that Pakistan link which has clearly been established. आज जी बिल्कुल, आज जो डायरेक्ट लिंक है वो डी कंपनी से अब कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अफरोज की गिरफ्तारी हुई है। अफरोज की गिरफ्तारी जो है यूपी पुलिस के लिए एक अहम मानी जा रही है, क्योंकि अफरोज वो शख्स है जो कि शारिक साटा और दाऊदी इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ है। शारिक साटा इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑटो लिफ्टर है, जो कि इस समय दुबई में बैठा हुआ, दुबई से अपने पूरे नेक्सस को ऑपरेट करता है। और जिसको पुलिस ने पकड़ा है अफरोज शारिक साटा गैंग के लिए काफी समय से काम करता आ रहा है, चाहे ऑटो लिफ्टिंग का काम हो, चाहे वो विदेशी वेपन्स की सप्लाई का काम हो। उसने पूछताछ में कबूल किया है कि 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद इलाके में जो हिंसा हुई थी, वहां पे शारिक साटा ने उसको निर्देश दिए थे कि अपने साथी के साथ हिंसा में जाके अपनी भागीदारी निभाए, और उसी दौरान वो पिस्टल निकालता है और पुलिस टीम पे फायर करता है, ऐसा पुलिस के मुताबिक कहा गया, जिसमें 2 गोलियां जो है बिलाल और आयान की लगती है, और जिसके बाद वो उनकी मौत हुई थी। और तभी से अफरोज फरार चल रहा था, और मौके से हिंसा वाली जगह से पुलिस को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कुछ कारतूस मिले हैं और यूएससी मेड खोखे भी मिले हैं, तो और विदेशी सप्लाई भी करता है हथियार अफरोज। तो इससे कहीं ना कहीं जो तार हैं वो डी कंपनी से जुड़ते नजर आ रहे हैं, और कई सारे जो सवाल हैं वो अफरोज पे भी खड़े होते हैं कि आखिरकार अफरोज किसके कहने पर विदेशी हथियारों की सप्लाई करता था, और किसने उसको कहा था कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जाए। और लंबे समय से शारिक साटा से जुड़ा हुआ पुलिस जो है अन्य शारिक साटा गैंग के जो सदस्य इस संभल हिंसा में शामिल थे, उनकी तलाश करने में भी जुटे हुए हैं। जी साहिल हमारे साथ बने रहिए। So like Sahil was telling us, other than the Pakistan link which has been established, there is also an underworld link which is being probed, as sources in UP police tell us that the accused Afroz had direct connection with the Daud gang. But let's also tell you that there is a purported video which has surfaced in which a Pak citizen is heard giving instructions to one of the riot accused. Let's put out those breaking news details on our screens. The video that has surfaced of the Maulana who's seen instructing Sambhal riot accused. In fact, statement that's now coming in from the Sambhal SP as well, saying that they are probing the veracity of that video and that the Pakistan link is being probed. So this is regarding that purported video that has surfaced in which a Maulana from Pakistan city is heard speaking to one of the riot accused. He's heard giving him instructions on the day of the riots, which was on 24th of November. Let's also put out that statement that's now coming in from the Sambhal SP, who's said that the role of this Maulana based out of Pakistan is being probed by the Sambhal police. एक मोहम्मद आकिल नाम के व्यक्ति जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एक मौलाना से सलाह मशविरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो हिंसा में लोग जिनकी मृत्यु हुई थी क्या वो सही रहे या नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। और वो एक किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से बात कर रहा है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है।
जिस प्लेटफॉर्म से उसने बात की है उस प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी And let's go across to Sahil again. Sahil, once again tell us about this video that we have accessed of Maulana based out of Pak, who's seen instructing the riot accused that very moment when the riots were breaking out on 24th of November. जी बिल्कुल, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल जरूर हो रही है। एसपी संभल ने भी स्टेटमेंट दी है कि वीडियो में संभल जनपद का ही रहने वाला एक मोहम्मद आकिल नाम का शख्स है जो कि पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना से बातचीत कर रहा है और संभल से हिंसा की जो जानकारी है वो मौलाना से साझा कर रहा है। साफ तौर पर यह भी सवाल करता हुआ नजर आ रहा है कि जो संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की मृत्यु हुई क्या वो शहीद कहलाए जाएंगे, ऐसे जो सवाल है वो मौलाना से कर रहा है। जैसे ही वीडियो पुलिस के पास गया तो पुलिस एक्शन मोड पे आई है। पुलिस के साथ साथ देश की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव हो चुकी है कि आखिरकार संभल जनपद का एक शख्स जो है मोहम्मद आकिल वो पाकिस्तान में बैठे मौलाना से किस तरीके से वीडियो कॉल पे जुड़ता है और इसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि जो तमाम सवाल हैं वो यही खड़े करते हैं कि मोहम्मद आकिल कोई ना कोई। जी साहिल, वी विल कीप कमिंग बैक टू यू। थैंक यू फॉर द मोमेंट।